Hello guys, so let's start JEE Mains solution of 22nd of Jan, second shift. Okay. Now first question. See what first question says. X is XYZ is a solution of the system AX is equal to B where adjoint of A given to us, B is given to us, then find X plus Y plus Z mode of it. Okay. We know that if this is the adjoint, then we know very well that is equal to adjoint of A, right? So it means determinant of A will be plus minus adjoint of A whole power half. Now let's find out determinant of adjoint. Determinant of adjoint A. We have given 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2 and 3. I'll get 4 into 5 2s are 10 plus 10 and 40 plus 2 into 5 1s are 5 and 3 5s are 15 and 20 to 40. Then 2 into 5 2s are 10 20, which is 100. So it means determinant of A will be plus minus 10. Okay, up to this point everything is clear. Now if it is given that AX is equal to B, can I write down X is equal to A inverse of B? And we know what is A inverse? 1 upon determinant of A and adjoint of A of into B. Okay, now let's put the values. Plus minus 1 upon 10 adjoint of A, which is 4, 2 and 2. 4, 2 and 2. Minus 5, 0 and 5. And 1, minus 2 and 3. And we have B. B we are given to 402. 402. Now, so it means X should be equal to plus minus 1 upon 10. Now let's solve them. 4 4s are 16. 16 and 4 20. Minus 5 4s are 20 and 10 minus 10. 1 into 4 4 and 6 plus 10. Now I'll get plus minus 2 minus 1 plus 1. Now what we want? We want, this is your actually X, this is Y, this is Z. Okay, add them. Plus minus 2 minus 1 plus 1, you will get plus minus 2. But we need to find the mode of it. We need to find X plus Y plus Z mode of it. So we will get 2 only. So answer is option C. Let's see. Yeah, option C. So we are given to that it is a parabola, it is an ellipse. If we try to draw this ellipse, it is nothing but vertical ellipse, where your this point is going to be 2 root 2, which is not important for us, and this is root 2, and we have a parabola. Okay, and we need to find this point. We need to find only x coordinate of this point because we have to find the area under this curve. So we have to find this area and this area, and then we will multiply it by 2. Why? Because of symmetry, this area and this area are going to be equal. Okay, let's find out this point. So if we use the value of y square from parabola, 4x square plus 4x equal to 8, x square plus x minus 2 equal to 0, then x will be minus 1 plus minus 1 square minus 2 minus plus 8
under root 9. Under root 9 means plus 3. And here I will get 2. So I'll get x is equal to two values. One we will get 1 and another we will get minus 2. For minus 2 you will get what? Y square is equal to minus 8, which is not possible, so we can discard this. Okay, so we will get x is equal to 1. This value is 1. So what we have to find? We have to do integration from 0 to 1 of 2 root x plus integration of 1 to root 2 of under root 8 minus 4x square dx, and we have to multiply this whole integration by 2. So this is easy one, and you can use that standard form. You will get sine inverse and something x into under root 8 minus 4x square plus 8 upon 2, which is 4, I think, sine inverse of 2x upon 2 root 2. 2x upon 2 root 2. So x upon root 2 it will be. Yeah. So using that you will get option, I think, 4. Next one. Let P is a point on the hyperbola. Okay, this point is on hyperbola. It means if you put 10 comma 2 root 15 here, what you will get? 100 upon a square minus 60 upon b square is equal to 1. This is first equation we are getting, whose focus are S and S dash. If the length of its lattice rectum is 8, so what is the length of lattice rectum? It's 2b square upon a is equal to 8. Okay, so it means b square is equal to 4a. Now using these two equations we will get 100 upon a square minus 60 upon 4a is equal to 1. Now multiply the whole equation by a square. You will get 100 minus, it will become 15 times, minus 15a is equal to a square, and I will get a square plus 15a minus 100. So middle term split 20 and 5. So a square plus 20a minus 5a minus 100 equal to 0. Now a plus 20 minus 5, a plus 20 equal to 0, and I will get a is equal to minus 20 and a is equal to 5. So now a is what? A is just a length. It cannot be a negative. Okay, this is discard. We can take this one, and from here your b square value you will get b square value will get 4 into 5, 4 into 5, which is 20. Okay, but we don't need b actually. What we need only SS dash. Okay, we need only SS dash. So SS dash is equal to 2 into a into e. So 2 into 5 into under root 1 plus e value is b square upon a square. So actually we need b square. So b square we getting 20, a square is 25. Now if we do simplification, 2 into 5
into root, how much you will get? You will get 5 here, okay, and 20, 45 under root 45. So this will get cut and I will get 9 out of it. 9 means 3. 6 root 5. This is your SS dash. Now what they are asking, if you see the diagram, they are asking if you have a parabola such like that, okay, where your this value is coming out to be a 6 root 5 and you have a point here, okay, somewhere here, let's say, and you make this triangle. What is the height of this triangle? Height of the triangle is 2 root 15, okay, and base of triangle 6 root 5. So area of PSS dash is equal to 1 upon 2 base into height. Okay, now simplify this. This will get cut. 6 into 5, 30. 30 root 3. 30 root 3. But they are asking for the square of the area PSS dash. So square of this 900 into 3, which is 2700. Okay, here we have next question. Z is a complex number. Okay, let Z is equal to x plus iota y. Now let's put the values. 4 into square of Z, you will get x square minus y square plus 2x y I plus z bar x minus iota y. It's coming out to be a 0. What is the meaning? It means that the real part of this is 0 and imaginary part of this is 0. Now let's take real part first. So real part you will get 4x square minus 4y square and plus x. It is 0. Now imaginary part, 4 2s are 8xy minus y is coming out to be 0. Take y common. 8x minus 1 equal to 0. Now if I take y is equal to 0, then I will get x values. Take this as 0. 4x square plus x. 4x square plus x. You will get one value is 0. Take x common, you will get 0. And 4x plus 1, you will get 1 upon minus 1 upon 4. Minus 1 upon 4. Okay. Now if we take 8x minus 1 equal to 0, I will get x is equal to 1 upon 8. And using this value, I will get two values of y. What are those values? 4 into 1 upon 8 square, which is 64, minus 4 into y square plus 1 upon 8 equal to 0. Okay. Now let's do simplification. Here this will get cut by 16 times. I'll get 4y square is equal to 3 upon 16. Yeah, 3 upon 16. So y square I'll get y square, I will get two values, 3 upon 64 and it will be root 3 plus minus 8. Okay. So for 1 upon 8 I am getting plus minus root 3. So what are the total values I am getting? One is 0 comma 0. Another is 0 comma minus 4. Another is 1 upon 8 comma root 3 by 8. Another 1 upon 8 minus root 3 by 8. Now if you do square of them, I'll get 0 from here, 1 upon 16 from here, plus 1 upon 64 plus 3 upon 64, 4 upon 64, which is 1 upon 16, and then again same 1 upon 16. So I am getting
3 upon 16, option 3. Yeah, option 3 is right, this is wrong. Next question. Okay, we are given Pn. Okay, see. Can I write down this Pn as summation 1 upon r plus 1, r plus 1 NCR minus 2 to the power r, where your r is going from 0 to n. Is it right? Yeah. Now this value I can get from summation of NCR minus 2 to the power r x to the power r dx and integration from 0 to 1. Now from here I will get, and this is summation NCR where your r is 0 to n, okay, minus 2r whole power r dx integration 0 to 1. Okay, next. Okay, this value is what? This is nothing but 1 minus, and I have done a mistake here, it should be x. Okay, now 1 minus 2x whole power n. This is what the meaning of it. Okay, dx. Now let's simplify it. 1 minus 2x whole power n plus 1 divided by minus 2 n plus 1, and the values I am getting from 0 to 1. Now if we put 1 here, I'll get 1 minus 2 whole power n plus 1 divided by minus 2 n plus 1, and minus, if you put 0 here, I'll get 1. Okay, now they are asking for P2n, so we have worked with the P2n. Let's find out P2n. P2n is equal to 1 minus, which is minus 1, which is minus 1 whole power 2n plus 1 minus 1 whole divided by minus 2 2n plus 1. Now 2n plus 1 is odd number, we will get negative 1 and negative 1, negative 2. This negative 2 and this negative 2, we can cut them. Okay, and 1 upon P2n is equal to is equal to 2n plus 1. Now we are getting n value 1 to 25, so I will get summation n is equal to 1 to 25. It will be of 1 upon P2n is equal to, it will be what, 3 plus 5 plus 7 plus up to 25th term 51, which is okay. We have 25 terms. Using the sum of AP, arithmetic progression, we can find out that 25 upon 2 multiplied by 3 plus 51, and it will be 25 into 54. 54, half of 54 is 27. Now simplify this, you will get your answer. How much it will be? 675. Next. Okay. Fx plus y is equal to fx into fy. So we can let fx is equal to a to the power x type of function. And it says that f1 is equal to 7. It means a to the power 1 is equal to 7
Okay, so a value is 7. Next, gx plus y is equal to gxy. Okay, can I write down g of x plus 1 is equal to g of x using this? Yes, it means ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 1 है. अब हमें यहाँ दिया है कि g1 1 है. नाउ आई कैन से g2 भी 1 होगा, g3 भी 1 होगा एंड सो ऑन. gn भी 1 होगा, वेर योर n इज अ इंटीजर और नेचुरल नंबर. ओके, सो सारे g की वैल्यू तो 1 1 1 हो गई. अब हमें सबमिशन क्या करना है? हमें सबमिशन करना है f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, और यहाँ x की सभी वैल्यू एक नेचुरल नंबर है. x की सभी वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो ये सब तो 1 हो गए. तो हमें सबमिशन सिर्फ x इज इक्वल टू 1 to n करना है, जहाँ पर हमारा fx आएगा ओनली, और fx क्या है? 7 to the power x. तो ये तो एक gp हो गई, ये तो एक gp हो गई. तो gp सम क्या हो जाता है? gp सम ऑफ gp विल गेट 7 into 7 to the power n minus 1 divided by 7 minus 1. 7 minus 1. And this value is given to us 7 into 7 to the power n minus 1 divided by 6. It's given to us 19607. Now if you do simplification, what I will get? Multiply by 6 and divided by 7. 7607 multiply by 6 divided by 7 plus 1 is equal to 7 to the power n. Now let's simplify this. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 3 36 5 10 37. Now it will be not divisible, but adding 7 maybe it will be divisible. Okay. Adding 7, then it will be a divisible. Then this must be 1's 9. It's not 7. 1 9. Okay. 14 5 56 divisible 0. Yeah, it is divisible by 7. 2 times 56. 56 8 times 0 1 into 6 plus 1. So how much I'll get? 6 ones are 6 and 1 7. 6 0. 6 2 the 12 and 16. Okay, cycle of 7, so it must be 7 to the power 5. It must be 7 to the power 5. Can I write down this equation as क्यों? जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक इंटीजर ऐसे ऐड हो, तो आप इसको x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी. अगर मैं इसको y कंसिडर कर लूँ, इसको y कंसिडर कर लूँ, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू, अगर 0 ले. क्यों? मैं कर रहा हूँ सबसे पहले सेकेंड टर्म, second option. Second option says fx is equal to 0 has finitely many values. Finitely many values. Okay. So what you will get here? Y is equal to 3 and 2. 3 and minus 2. So is equal to 3 and minus 2 has infinitely many solution. Infinitely many solution. Okay. Has infinitely many solution. So this is wrong. Next, let's take for integration. So for integration part, if we do integration of this, okay, first let's do integration of this. From 0 to 2, you will get minus 12. Okay, for this part, and then you have to do integration of
x square minus x dx from 0 to 2. See, for 0 to 1 you will get what? 0 minus 0 for 0 to 1. Now 1 to root 2, 1 to root 2 you will get 1 minus 1. So you just have to take care about root 2 to root 3 and root 3 to 2. Okay, so you just have to take care about root 2 to root 3 plus root 3 to 2. Okay, root 2 to root 3, what you will get? Here you will get 2 minus 1, which is 1 dx. Now root 3 to 2, what you will get? Here I will get 3, here I will get 1. So 3 minus 1, 2 dx. Okay, if we solve this, what I will get? Root 3 minus root 2 plus 2 minus 2 to the 4 minus 2 root 3. So overall it will be 4 minus root 3 minus root 2 and minus 12, which is not equal to minus 6 for sure. So this is wrong. Okay, next. This option says that x for this function is greater than 0 for only 4 to infinity. It's not true. See, this function can be written as, this is floor function, okay? Minus 3 plus 2, okay? Now if you use the wavy curve method, let's take this as y minus 3 and y plus 2. So I'll get 3 and 2, okay? 3 and 2. So in this region I'll get negative, here I'll get positive, here I'll get positive, and y value less than 2 means greatest integer function less than 2, where you will get? You will get for minus 5, take minus 5, what you will get here? For minus 5 you will get, here minus 5 minus 3 into minus 5 plus 2. It is surely a greater than 0. It is surely greater, but it says only for x. So this is also wrong. This is we have proved. This is we have proved that wrong. So answer must be this. Okay, and for this too you can also prove from here. Why? Because you are getting negative value of y here. So what values of y are possible? Less than minus 2. Less than minus 2 means minus 1, and you will get minus 1 from minus 1 to 0. You will get minus 1. Okay, minus 1 to 0 you will get minus 1, and 3 you will get 0. Less than 3 you will get negative number. You will get negatives. You will get this function to be negative, because less than 3 you will get what? Here you will get 2 and 1. You will get possible values of floor function between this. It's minus 1, 0, 1 and 2. Okay, and for this value you will get this negative, this function to be negative. Let alpha comma beta be the root of the quadratic equation. Okay. Can I write down this equation as 1 upon 4 greater than equal to beta minus alpha whole square less than equal to 9 upon 4. Now I can write down this alpha plus beta whole square minus minus 4 alpha beta less than equal to 9 upon 4, 1 upon 4. Now from this equation, alpha plus beta, it should be equal to minus b upon, means 5 upon 3 positive, and alpha into beta is equal to
3 lambda by 12, it will be cut lambda by 4. So let's put the value 1 upon 4 less than equal to 25 upon 9 minus 4 alpha into beta lambda by 4, which is only lambda, less than equal to 9 by 4. Now let's do simplification. Then lambda must lie between this number here, minus 9 by 4 plus minus 9 by 4 plus 25 by 9 and minus 1 by 4 plus 25 by 9. So it must be here 100 minus 91 by 36 plus, okay, 9 9s are 81, 19 plus 19 by 36. So 36 ones are 36, 36 twos are 72, and 3s are you will get more than 91. And it says that lambda is a integer. So how many integers are possible between this 1 and 2? So these are the possibilities. These are the possible values of lambda, which is 1 and 2, and answer is 3. 1 plus 2. Deviation. If the mean deviation about the median, okay, mean deviation about the median is summation of xi's minus x median divided by n. Okay, what is the median of this? Middle two terms are 500k and 501k. So the middle and the average of these two are 500.5k. Okay, this can be written as 1001k divided by 2. Okay, now see, this is 1k, 2k, up to 500k, 501k, up to 1000k. Okay, now what is the distance between this point? This is our median, which is 100k, 1001k divided by 2. What is the distance between these two numbers? Half and half. Half of k, half of k. So 2 into half of k. Why? Because meaning of this what? Meaning of this means distance of xi from xm. Okay? It doesn't matter is it positive or negative. Distance is always positive. We have mode. So the distance between this and this k by 2. And we are getting this k by 2 twice. Now next we have this distance from 502 and 499. You will get how much the distance will be? Distance will be 3k by 2. Similarly, you will get up to, what is the distance between 1000 and this number? It will be 499 plus half, which is 9,999k divided by 2. And we have to divide it by n, which is 1000. Okay, this value is given to you 500. Now let's add this. It's a AP where your A is k by 2. First you have how many terms? You will have 500 terms. Okay, first term is k by 2 plus last term is 999k by 2 and whole divided by 1000. This will get cut here. I'll get from inside, I'll get 1000k by 2, which is 500k. So 500 outside, 500k and divided by 1000, I am getting 500. So this will get cut. Okay, this will get cut, and the k value you will get 10 by 5, which is k is equal to 2. Then k square is equal to 4. Option 2. A to the power a minus x. If we expand this series, I'll get. If we expand this series, I'll get a minus 1. Okay, 1 plus a minus 1 x
plus a minus 1 whole square x square by 2. 2 factorial, which is 2. Okay, next I'll get from this series, I'll get 2 minus 2b square x square by 2 factorial plus and so on. Next I'll get c minus 2 minus c minus 2 x plus c minus 2 x square by 2 and so on. And in denominator I have x square, no, x into cos x, x into 1x minus x into x square, x cube by 2 factorial plus and so on. And because of this I'll get minus x plus x square by 2 minus and so on. Higher powers, this will get cut. So डिनोमिनेटर में हमारी मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी हमारी मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो न्यूमरेटर के अंदर जो x की पावर 0 है और x की पावर 1 है, उनके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए. तो सबसे पहले x की पावर 0 के कोफिशिएंट देखते हैं. 1 plus 2 and c minus 2. It should be 0. This will get cut. C is equal to minus 1. Okay. Next, coefficient of x should be 0. Coefficient of x, a minus 1 and minus c minus into minus plus 0. If you take the value of c, which is minus 1, you will get minus 1 plus 2. This will get cut, equal to 0, and a is equal to minus 2. Now, if you take x square common from numerator and denominator, if we take x square common from numerator and denominator, then I'll get x square, coefficient of x square we have a minus 1 whole square upon 2 and minus 2b square by 2 and plus c minus 2 divided by 2. And in numerator I am getting 1 upon 2. What about other powers? Okay. If we apply the limit x going to 0 here, limit x going to 0. If we apply the limit, all other terms will become 0. And here I am getting 2. Now simplify this equation. I'll get minus 2 and minus 1, I'll get 3. 3 is minus 3 square, it is 9 by 2. Minus b square plus into minus 3 by 2 is equal to 1. Okay, I just send this half on the other hand side. Now from here I'll get 6 by 2, okay, which is 3. 3 minus 1 is equal to b square. So b square is coming out to be a 2, a square is coming out to be 4, and c square is coming out to be 1. Add them, 5 and 7, option 2. Okay, let's go for next. Let n be the number of 10 rolling a fair die. If the probability that the system has a unique solution is k by 6, then the sum of k and all possible values of n. Sum of k plus all possible values of n. Okay. See, if this system has a unique solution, it means the matrix you will make 1 minus n plus 1 and 1 n minus 2 and n plus 1, and next n minus 1. Okay, this is actually 0 because x coefficient is 0, and n minus 1 here and 1. If we take it is equal to 0, okay, we will discard those values. वो वैल्यूज जो n की, वो वैल्यूज जो हमें 0 दे, हम उसको हटा देंगे. ठीक है, देखते हैं. तो इसको जब मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे मिलेगा यहां से तो n minus 2 minus n minus 1 and n square minus 1 directly, and then minus n multiply by n plus 1 equal to 0 and minus 1 plus now this one n minus 1.
equal to 0. Now let's do simplification. So I'll get n minus 2 minus n plus n square plus 1 plus n minus 1 equal to 0. Okay, this will get cut. 3n minus 2, so I'll get n square minus 3n plus 2 equal to 0. Okay, so I'll get 1 minus 3 plus 1. Yeah, one answer is 1. Another 2 2s are 4. 4 minus 6 minus 2. Yeah. So n, it should not equal to 1 and 2. It should not equal to 1 and 2. So on dice we have 1 2 3 4 5 6. अगर इन दोनों को हटा दिया तो बचे क्या? n की पॉसिबल वैल्यूज क्या बची? 3 4 5 6 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6. तो इसकी वैल्यू तो हो गई 4, तो k की वैल्यू हो गई 4. ऐड कर लेना इनको, कितना आ जाएगा? 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 and 4 22. आंसर इज 4 22. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन. ओके, पहले हम ये पार्ट पकड़ते हैं, इस पार्ट को. तो देखो, इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. ठीक है, अगर इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा. ये अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. पहली बात तो ये कि इसको तो बड़ा होना पड़ेगा 0 से. वाई? क्योंकि ये लॉग के अंदर, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती. और इस पूरी वैल्यू को 1 से बड़ा होना पड़ेगा. चलिए, इस पूरी वैल्यू को अगर 1 से ग्रेटर रखे, 7 माइनस लॉग बेस 2 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85, it should be greater than 1. Now send this one on other hand side. 6 should be greater than log 2 to the power this equation. तो इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 to the power 6 is 64. 2 to the power 6 से छोटा होना पड़ेगा. It should be greater than 0 now. अब एक बार इसका d देखते हैं. आई थिंक 10 स्क्वायर 100 एंड माइनस 4 इंटू 85. तो चलो, ये इक्वेशन के तो कोई रूट है ही नहीं. इसका मतलब इसका d तो लेस देन 0 है. ये कभी 0 से नीचे जाएगा नहीं. आपको इसकी फिगर अब करनी नहीं है. अब हमें फिगर बस इसकी करनी है. 64 लेस देन दिस नंबर, आई कैन राइट डाउन दिस होल इक्वेशन एज x स्क्वायर माइनस 10x 64 and 85 21 positive 21. It should be less than 0, and this is x minus 7 and x minus 3 less than 0 using wavy curve method. So positive negative positive 3 and 7. चलिए, इसका तो एरिया हमें मिला है ओपन 3 to ओपन 7. इसको रखते हैं, बाकी सबको रफ करते हैं. मिला हमें ओपन 3 to ओपन 7. अब इसकी बात कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए. इसकी वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए. 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 17 माइनस x. तो इसकी वैल्यू, वैसे मोड हटा देते हैं, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए. मोड हटाओगे तो लेस देन इक्वल टू एक्चुअली 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1. चलिए, पहले 1 के लिए कर लेते हैं. 1 के लिए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 7 माइनस से ला के -17 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 17 माइनस x. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 4x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 17 माइनस x. इट्स लेस देन 0. ठीक है, using wavy curve method, one solution is 17. एंड देखो 17 पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो 17 पे ओपन रखना है. और दूसरा हो जाएगा 6, यस
6 पे हम लोग रख सकते हैं बिकॉज इक्वल टू 0 है. तो वे यूजिंग वेवी कर्व मेथड वी विल गेट this part. So from 6 to open this. Is it right? Oh, give me a second. Let's check for it. 80, I'll get positive. Yeah, I'll get positive 80. So positive, negative, positive. Next, take this one. Okay. I'll get 3x minus 7 plus 17 minus x whole divided by 17 minus x. It should be greater than equal to 0. Okay. So 2x plus 10 divided by 17 minus x greater than equal to 0. तो now using wavy curve method, तो चलिए 17 पे तो ओपन होना चाहिए. ठीक है, 17 पे ओपन रखेंगे. 17 पर ओपन रख दिया. उसके बाद वेवी कर्व मेथड का अगर यूज़ करें 2 कॉमन लेके x माइनस 5. अब देखते हैं 0 पे क्या आता है. 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, एंड व्हाट वी वांट पॉजिटिव. सो इट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस. अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है. Is there any mistake I have done? Okay. This is positive. This is positive. This is negative. This is negative. So the answer for this one will be from minus infinity to 6 close union 17 to positive infinity. This will be the, now see the common part. The common part is from minus 5 to plus 6. Minus 5 to plus 6. Now the common part between those two, it's 3 to 6. 3 to close 6. So your alpha value is 3 and beta value is 6. So alpha is equal to 3 and beta is equal to 6. That's it. Option 2. Now next, let L be the line and let S be the set of all points A, B, C on L whose distance from the line along the line L is 7. Okay, एक लाइन है पहले ये L, ये है L, और एक अदर लाइन है ये. तो इनके बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. अब इस डायरेक्शन में जब आप 7 स्टेप जाते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है. ये आपका A, B और C है. लेकिन इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में भी जाते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है. ये भी आपका A, B, C है. तो पहले हम ये कॉमन पॉइंट निकालते हैं. तो देखो इसका कोई भी पॉइंट कैसा दिखेगा, 2 लैम्बडा माइनस 1, और इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा किसी भी पॉइंट का, 2 म्यू माइनस 1. सो यहाँ से मिल जाएगा मुझे लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू. ओके, देखो दूसरे के लिए भी हमें सेम ही मिलेगा तो हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी. तीसरे के लिए देखते हैं. यहाँ से तो मुझे मिल जाएगा 6 लैम्बडा माइनस 3, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू 0 म्यू इंटू 0 प्लस 9. तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरा लैम्बडा इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वल टू म्यू भी हो जाएगा. तो मेरे इसके तो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए. ये कोऑर्डिनेट मेरे क्या बनेंगे, वैल्यूज रखते, 2 रख के देखते. 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 2 6, 6 माइनस 1 5, एंड तीसरा तो 9 ही होगा हमेशा. या फिर इसमें रख के भी देख लो तो 6 2 12, 12 माइनस 3 9. तो ये तो हमेशा 9 होगा. चलिए अब इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में 7 यूनिट इस तरफ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. तो अगर मैं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में 7 यूनिट आगे जाता हूँ तो 7 यूनिट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इसके यूनिट वेक्टर इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, 2 2 4, 3 3 9, 36, 7, सो 2/7, 3/7, 6/7। अब ये प्लस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक तो मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ, तो मुझे दो टाइप के पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 9 + 6 15। एक मुझे नेगेटिव करने पे 3 - 2 1, 5 - 3 2, 9 - 6 3। अब ऐड कर लेते हैं, इनसे मिल गया मुझे 6 + 10 + 8 14 24। देन द समेशन ऑफ a + b + c इज इक्वल टू, ओके ये 15 है, मैंने 5 क्यों कर दिया, ये 18 है, तो 24 and 10 34। Among the statements are two vertices of a triangle whose orthocenter is 0, 0, then its third vertex is this. Okay, let's make a triangle. Let's say this is our A and B is given and this is C. Now let's make perpendiculars. Let's make perpendiculars. This is 0, 0. This is 0, 0. A की कोऑर्डिनेट है 5, -1, B के कोऑर्डिनेट है -2, 3, C के कोऑर्डिनेट है h, k। यहाँ पे कर लेते हैं h, k, ठीक है। तो देखो यार, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब m of AB इंटू m of CO, इट शुड बी -1। निकालते हैं, AB की m क्या हो जाएगी, -1 - 3, ओके 3 एंड ये 4, 4/3 -1 -2 -5 -7 इंटू, अब इसकी देखते हैं, इसकी हो जाएगी k/h, k/h -1 माइनस कटा 4k इज इक्वल टू 7h, ये कोई इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, इन दो की लाइक AC और BO की ले लेते हैं, AC और BO की ले लेते हैं, M of AC, M of BO, ये कर लेते हैं, इट शुड बी -1। चलिए AC की M क्या हो जाएगी, k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 h - 5 इंटू BO कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2 एंड -2 एक्चुअली, तो यहाँ माइनस लेते हैं, इक्वल टू -1, ये माइनस कटा, या k 3k + 3 इज इक्वल टू 2h - 10, सो इट विल बी 3k इज इक्वल टू 2h - 13, 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7h/4, 21h/4, 2h - 13। इसको इधर लाते हैं, 21h - 8h/4 इज इक्वल टू -13, सो यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 13, सो 13h इज इक्वल टू -13 इंटू 4, योर h इज इक्वल टू -4, पुट द वैल्यू ऑफ h हियर, पुट द वैल्यू ऑफ h हियर, 4k is equal to 7 into -4, this will get cut by -1, so k is equal to -7, या तो -4, -7 तो मिल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ पॉजिटिव नंबर 2a + b and c are 3 consecutive terms of AP, ओके, तो इसका मतलब 2b is equal to 2a + c होगा, सबको उठा के एक तरफ लाओ, तो 2b - 2a + c, ओ नॉट +c, इट्स -c, या एक काम करता हूँ, सबको उधर ले जाता हूँ,
So 2b is equal to 2a, yeah, we have 2a plus 2a plus c, yeah. So it will be become 2a minus 2b plus c equal to 0. अब ध्यान से देखो यार, अगर a b c किसी लाइन में कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो लाइन होगी वो हमेशा 2, -2 से गुजरेगी, हमेशा 2, -2 से गुजरेगी, ठीक है, हमेशा 2, -2 से गुजरेगी। अब वो लाइन के दूसरे पॉइंट मुझे नहीं पता, बट 2, -2 से हमेशा गुजरेगी, क्योंकि देखो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं और y की वैल्यू -2 कर दूं तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन हर बार ट्रू है। ये कंडीशन का सही, क्योंकि a b c सारे किसी AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 2a b and c, नॉट a b c, 2a b and c, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 2, -2, तो वो लाइन हमेशा 2, -2 से निकलेगी। तो बोथ आर करेक्ट। क्लोज ओपन 1 तक gx जो है वो x हो जाएगा, कहां से, फॉर 1 से लेके √2 तक, एंड सेम फॉर gx, ये 2x हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, कहां से कहां तक, √2 से √3 ओपन तक, और इसकी वैल्यू 4 भी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 भी हो जाएगी फॉर x √3 से 2 तक। इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। अब नेगेटिव में जाए तो देखो, नेगेटिव में gx माइनस ये कितना देगा, ये -1 देगा, ये -1 देगा 0 से -1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये -1 देगा, और ये -x देगा, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा x। कहां से कहां तक के लिए, ये हो जाएगा -1 ओपन से लेके 0 क्लोज तक, या फिर 0 पे तो 0 देगा। फिर gx जो है -1 से √2 के बीच में -2 देगा, तो ये तो देगा -2 और ये देगा माइनस, तो ये +2x हो जाएगा फॉर कहां से कहां तक, -√2 से ओपन 1 तक। नाउ फॉर gx इट विल बी 3x, पॉजिटिव 3x। देखो √3 पे ये दे देगा, -√3 पे ये देगा -3, -√3 पे ये देगा -3, और ये मुझे देगा -x, सो इट विल बी पॉजिटिव 3x फॉर x -√3 से -√2। अब लास्ट में एक और आएगा बस आपका, gx इज इक्वल टू, देखो -2 पे तो ये 4 देगा, -4 देगा, लेकिन हम -2 पे बात ही नहीं करनी है, हमें उससे पहले बात करनी है, तब भी वो 4 ही देगा। -2 से लेके -√3 तक ये हमेशा 4 देगा। x -2 से लेकर, बट ओपन रखना है क्योंकि -2 हमें लेना नहीं है, से लेके -√3 तक, ठीक है। तो अब ये डिसकंटिन्यूअस देखो कहां कहां पर हो रहा है, देखो 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 0 पे मुझे इस फंक्शन से 0 मिल रहा है, और इससे ठीक पहले वाला मतलब यहाँ पे भी मुझे 0 पे देखो क्या मिलेगा, 0 पे मुझे 0 ही मिलेगा, तो 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। 1 पे देखो, 1 पे तो मुझे यहाँ 1 देगा, लेकिन यहाँ 0 देगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। सेम थिंग फॉर -1 पे यहाँ मुझे ये -1 देगा, और यहाँ मुझे -2 देगा, तो -1 पे भी। सिमिलरली फॉर +-√2 +-√3, इन पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अब उसने पूछा क्या मुझसे, मुझे सारे fx बताओ इन पॉइंट्स पे। चलिए देखते हैं, +1 यहाँ पे रखता हूं मैं, तो क्या क्या मिल जाएगा, √2 and 1, तो √2 बड़ा है। -1 पे क्या मिलेगा, -√2 and 1, ऑब्वियसली ये छोटा है, ओके, इसने एक्चुअली मिनिमम बोला है ना, तो यहां बनाएगा फॉर 1 प्लस इन दोनों में से छोटा -√2,
प्लस रूट टू पे देखते हैं। प्लस रूट टू पे वो तो मुझे देगा 2 और ये भी मुझे देगा 2, दोनों 2 ही देंगे तो 2 ले लिया। माइनस रूट टू पे कौन देगा, दोनों 2 ही देगा, हाँ। तो माइनस रूट टू पे ये तो मुझे देगा -2 और ये देगा +2, तो -2 लेना होगा। अब प्लस रूट थ्री पे ये तो देगा √6 और ये देगा मुझे 3, एक देगा मुझे √6, एक मुझे देगा 3। बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा, अच्छा बड़ा नहीं, मिनिमम दे, हमें तो मिनिमम देखना है, तो ये मिनिमम है, हमें मिलेगा √6। माइनस रूट थ्री पे ये मुझे देगा -√3 और ये मुझे देगा 3, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम है, तो -√6 देगा, तो -√6। अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - √2, या वी हैव ऑप्शन 3। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सी, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन है, देखो cos y अपॉन 1 + 2 sin y dy is equal to dx divided by an integration dx is under root x plus 9√x 4 plus under root 9 plus √x, ओके, एंड 1/16 भी है हमारे पास। अब देखो इसमें अगर मैं 1 + 2 sin x को 2 sin y को t ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, cos y dy is equal to dt/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log t, सो log t की वैल्यू है 1 + 2 sin y, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ 4 + 9 + √x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 √9 + √x एंड √x का हो जाएगा 1/2 √x is equal to dt and here we have dx। तो देखो ये वैल्यू तो हमारे पास है, सिर्फ उस 2 to the 4 को उधर भेज दो, तो हमारे पास बन जाएगा 1/9√x plus x under root and here I am having dx is equal to 4 dt। Okay, so using this I'll get simply log of t, so I'll get 4/16 log of t, where your t is 4 plus √9 plus √x, तो ये कट जाएगा 4 टाइम, एंड यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट भी आता है, मैंने उसको माना log c। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, √1 + 2 sin y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगी 4 + √9 + √x होल पावर 1/4, एंड c भी आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में c, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोग वैल्यू यूज करते हैं 256 16 + 9 25 under root 5 4 + 5 9 to the power 1 4 3 to the power 3 root of 3 सॉरी, और यहाँ पे π/2 रखते हैं तो 1 + 2 under root 3 is equal to c√3 हो जाएगा, ये कट का c is equal to 1। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी, y49 पर, ओके, अगर y49 पे अल्फा आता है तो 2 sin अल्फा मीन्स हमें 1 + 2 sin अल्फा अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 49 7 + 9 16 अंडर रूट 4 + 4 8, so 8 to the power 1/4, square both side 1 + 2 sin alpha is equal to 8 to the power half, which is 2 √2, and send this minus to 1 there,
2 root 2 minus 1. 2 root 2 minus 1, option 4. The number of element in the relation. Okay. 50 और x और y जो है ये हमारे इंटीजर्स है. तो चलिए x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? देखो 0 तो होगी, उसको नहीं देखते, हम सिर्फ अदर वैल्यूज को देखते हैं पहले. ये 0 है तो कौन कौन से स्क्वायर आ जाएंगे? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 अप टू प्लस माइनस 7. ये तो हो गई हमारी 14 वैल्यूज हर 0 के साथ, और एक हमारा 0. सो टोटल यहां से हमें मिले 15 सॉल्यूशन. 0,1, 0,-1, 0,2, 0,-2. Okay, 14 values this and 0,0. If we take x is equal to 1, 4 उधर गया 49. तो अब हम 6 स्क्वायर तक जा सकते हैं. तो y की वैल्यूज जो होगी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 6. तो 12 वैल्यू तो ये मिल गई, 12 वैल्यू तो ये मिल गई. एक 0 हो जाएगा. ओके, एक्चुअली x की वैल्यू तो हम लोग प्लस माइनस 1 रह सकते हैं. 12 वैल्यू ये हो गई. एक वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, तो टोटल 13 वैल्यू. तो y की 13 वैल्यू, x की 2 वैल्यू, हमें मिल गए टोटल 26 सॉल्यूशन. उसके बाद x बर इक्वल टू प्लस माइनस 2 लेते हैं, तो y की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 52 माइनस 16 36. तो y स्क्वायर शुड बी लेस देन 36. तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 से लेके प्लस माइनस 5 तक. 10 वैल्यू ये हो गई, और 0 भी तो हो सकती है. 10 और 1 11, 11 का इंटू 2 कर दिया, 22 वैल्यूज आ गई. उसी तरह x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तक जाते हैं. 3 3 9, 9 4 36. तो 36 माइनस करते कितना आता है? 16. लेस देन 16, लेस देन 16. तो y की वैल्यूज हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 1 से लेके प्लस माइनस 3 और एक 0. तो कितनी होगी? 6 और 1 7, 7 इंटू 2 14 वैल्यूज. फिर अगर मैं 4 कर दूं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है. तो कितनी वैल्यूज मिल गई मुझे? 15 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 14. ऐड करते हैं इनको, ये हो गया 30, 40, 40 और 52, 50, 40 और ये 62, 67, 77. क्वेश्चन नंबर 18. a इज इक्वल टू कोई वेक्टर दिया हुआ है, b भी एक वेक्टर दिया, बट उसमें एक लैम्बडा है जिसमें कंडीशन है कि लैम्बडा जो है वो एक इंटीजर है. लैम्बडा जो है वो एक इंटीजर है. टू वेक्टर. सबसे पहले दिया मुझे c दे दिया कि a क्रॉस b है. चलिए c निकाल ही लेते पहले. c इज इक्वल टू i j k. वेक्टर्स है हमारे पास 2, -1 एंड +1, और यहाँ पर है लैम्बडा एंड 2 एंड हियर इज 0. नाउ लेट्स फाइंड आउट c वेक्टर. c वेक्टर हमारे पास हो जाएगा -2, ये माइनस है, हाँ माइनस है, -2 एंड -1. ओके, 2 -1 एंड 1 एंड 0 लैम्बडा एंड 2. चलिए ठीक है. So 2 1s are 2, which give us -2 and minus lambda. This is the value of I. Plus for j, I'll get 0 and 2 2s are -4. Plus for k, I will get 2 lambda and that's 0, 2 lambda for k. ये हो गया है हमारा C. अब इसने क्या बोला है कि जो C है उसका मैग्नीट्यूड 53 है. क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 53, राइट? नाउ 2 2 ज़ा 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 16 प्लस 4 lambda square minus 53 must be equal to 0. Now from here 5 lambda square plus 4 lambda minus
33 इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 33 हो जाए, यानी कि 165, और उनके बीच का डिफरेंस 4 हो। तो या तो आप ऐसे कर लो या फिर मेरी मानो तो ये हो जाएगा -4x लैम्बडा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 16 प्लस 4 5 20 एंड 660। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा और फिर मुझे यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 5। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ध्यान से देखो ये 26 का स्क्वायर है, 26 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां से मुझे दो वैल्यू मिल रही है। एक तो मुझे मिलेगी 22/10 जो कि हो जाएगी 11/5, नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। और एक मिलेगी -3। ठीक है, -3 एक्सेप्टेबल है। -3 से अगर मैं c निकालने जाऊं तो c की वैल्यू क्या बनेगी? c की वैल्यू बन जाएगी -2 एंड माइनस लैम्बडा, मीन्स ये मुझे मिल जाएगा -5i माइनस 4j देन -6k। ओके, अब दूसरी बात उसने बोली कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है d जो सिर्फ yz प्लेन में, तो मैं z को मान लेता हूं, z वेक्टर को मैं मान लेता हूं yj प्लस z की। और उसने एक बात बोली कि y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से z स्क्वायर की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाएगी। अब निकालते हैं हम c डॉट डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, -4y एंड -6z whole square. Now let's simplify this square. 16y square plus 36z square plus 6 was a 24 and 48yz. Now z square की जगह हम रखते हैं 4 minus y square, 16y square plus 36 into 4 minus y square plus 48y और रूट 4 minus y square। जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करने पे मुझे मिल रहा है यहाँ पर 16y square plus 144 and minus 36y square plus 48y रूट 4 minus y square। इन दोनों से मिल जाएगा मुझे -20y square plus 144 plus 48y रूट 4 minus y square। अब देखो, जेई ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर बार देगा कि जो एग्जाम प्रेशर में करना उसकी कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन। अब इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूं और इसका डिफरेंशिएट करता हूं। इसको मैंने एक माना कि ये हमारा f है, f इन y, और इसका डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 करने से मुझे हाई मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे मिलेगा -40y स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 48 रूट 4 minus y स्क्वायर प्लस 48y, इस 2 से ये कट जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और डिवाइड में आएगा हमारे पास रूट 4 minus y स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, मैं कुछ ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ। अब ओके, मैंने डिफरेंशिएशन किया है, वो आप हटिए सर।
यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ठीक है। 48 को कॉमन लेते हैं, -40y², not y², it's just y, plus 48 common, I will left with 4 minus y², 4 minus y² and minus y² whole divided by root 4 minus y²। अब इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं, इसको इक्वलेट टू 0 करते हैं, यहां से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 96 4 minus 2y²। ओ 2 तो कॉमन चला गया, 2 minus y², 4 minus y² power half is equal to 40y। स्क्वायर बोथ साइड, और स्क्वायर बोथ साइड से पहले देखिए दोनों 8 से डिविजिबल है, 5 टाइम 16 टाइम। नाउ स्क्वायर बोथ, send this on other hand side and then square both side. I'll get here, it is divisible by 12 time, so 144 multiply by 2 minus y² whole square is equal to, here I'll get 25y into 4 minus y whole square, 4 minus y² bracket close, and here you are getting square. I am doing just square both side. Okay, so that's why I said this is the only question which required this much of calculation in this paper. जो एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 90% बच्चे एग्जाम प्रेशर पे नहीं कर पाते, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, बट ऐसा ये इकलौता क्वेश्चन मुझे इस पेपर में लगा है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल टू 100y² माइनस 25y टू द पावर 4, एंड एक्चुअली जब यहाँ पे आपने स्क्वायर करा तो ये पावर 4 है और ये 2 है, ठीक है। अब और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 5 प्लस 144y टू द पावर 4 माइनस 576y² is equal to as it is this one. Now इनको इधर लेकर आओ तो 144y to the power 4 and 25y to the power 4, 169y to the power 4। फिर अगला और क्या है हमारे पास, स्क्वायर है ये, और ये मिलके बन जाएगा हमारे पास 676y², और फिर बचता है 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 208 468, हाँ तो हम कर सकते हैं 169 y टू द पावर 4 माइनस 208y² माइनस इसमें से 208 और ये 8 और ये हो जाएंगे 68, 468 y² प्लस 576 इक्वल टू 0। तो ये चीज सोचना यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे हार्ड चीज यही है, इस चीज को सोचना, जो कि मोस्टली मैं मानता हूं कि स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट, अगर किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको यहां से 13 कॉमन आ रहा है, 13y² कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 13y², और यहाँ पे बचेगा 16 टाइम आता है 16। यहाँ से 36 माइनस 36 कॉमन लिया, 13y² माइनस 16 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे मेरे बन जाएंगे 13y² माइनस 36 और 13y² माइनस 16 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 4/√13 कॉमा प्लस माइनस 6/√13। अब आप इनमें से ये चारों वैल्यू रख के चेक कर लेना। कहां पर? मेन फंक्शन में, जो हमने fx निकाला था, जो मैं रफ कर चुका हूं, उसमें रख के देखना कि कौन जो है हाईएस्ट दे रहा है। आपको हाईएस्ट ना -4/√13 पे मिल जाएगा, जो कि होगा 208। ओके द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड थ्रू द ओरिजिन। देखो कोई भी एक कॉर्ड जो कि किसी पैराबोला से निकलती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? S1 = S11। तो यूजिंग दिस वी विल गेट y into y1 minus 2 into x plus x1 is equal to y1² minus 4x1। अब उसने कहा वो 0,0 से निकलती है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, मुझे मिलेगा -2x1 is equal to y1 minus 4x1। y1² is equal to 2x1, जो कि एक छोटा पैराबोला हो गया। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला, तो इसके ऊपर कोई भी मैं पॉइंट अगर लेना चाहूं तो पॉइंट क्या होंगे? वो पॉइंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा यहाँ पे t, और अगर t है तो ये हो जाएगा t²/2। ये दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब t²/2 से 0,0 पे हम लोग एक ऐसा पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो इस को 3:1 में काटे। तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? उसका x कोऑर्डिनेट होगा 3t²/2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3t/2। ठीक है, यहां से थोड़ा कंपेयर करते हैं। यहां से मुझे y क्या मिल रहा है? 2y/3 is equal to t, ये मुझे मिल रहा है। इसको अगर मैं यहां रख दूं तो x is equal to 3/2 multiply 2² y² by 3²। This will get cut, this will get cut, I will get 2y² is equal to 3x। 2y² is equal to 3x। Okay, option 2। Let s and s dash be the foci of the ellipse. Okay, alpha and beta be your point on the ellipse in the first quadrant if sp² or sp² plus s dash p। Okay, ठीक है, हमारे पास एक इलिप्स है कुछ ऐसा, और इसकी फोकस से कोई एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में P। ओके, ये S डैश है, ये S है। इसकी दूरी का सम हमें पता है हमेशा क्या होता है? SP plus SP dash S dash P is always 2 into A। So A की वैल्यू देखो 5 है, A is equal to 5 है, B is equal to 3 है, तो ये तो हो जाएगा 10। तो sum of these two is given to 10। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं इसको, तो देखिए क्या ये चीज लेट्स से मैंने यहाँ पे -2 SP S dash P को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिया, SP S dash P, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SP plus S dash P whole square minus 3 into SP dot PS dash is equal to 37। Okay, now let's put the values। इसकी वैल्यू हो गई 100 माइनस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, is equal to 37। चलिए, so 37 and this 100 minus 37 is equal to divided by 3 is equal to SP into S dash P। Okay, now if we divide this, how much I'll get? 63/3 which is 21। So देखिए SP and PS and PS dash, इनका सम मुझे पता है, इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है। मतलब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 10x प्लस 21 के रूट्स है। तो इनके रूट्स क्या है? देखो x is equal to 3 and 7, ये दो रूट्स है। SP and SP dash इनकी वैल्यू 3 and 7 है। अब यहां से मैं सीधा बता सकता हूं कि ये 7 होगी और ये 3 होगा, ये 7 होगी और ये 3 होगी। अब यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला
you can easily find alpha and beta. How? See, first you need to find this point. Okay, तो इसकी e कितना होगा? e का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस 9/25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5. चलिए, तो ये तो हो जाएगा EA विच इज 4,0 और ये हो जाएगा -4,0. ओके, 4,0 एंड -4,0. चलिए, 4,0 से अल्फा कॉमा बीटा की दूरी क्या हो जाएगी, जो कि है 3. 4,0 से, तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और एक हो जाएगी 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49. एक इक्वेशन में दूसरे को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ तो मुझे मिल जाएगा 40, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 16 अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5/2. अगर अल्फा ये है तो बीटा कैसे निकालो, किसी भी एक में रख दो, किसी भी एक में ये वैल्यू रख दो यहां से. सो 4 माइनस 5/2 इट्स इक्वल टू 1.5, या मीन्स 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो उधर जाके ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4. सो इसको कर लेते हैं हम 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 27/4, 27/4. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, अल्फा स्क्वायर 25/4 और ये 27/4. ऐड करते हैं 52/4. 52/4 इज 13. 52/4 या 27 plus 25, या 52/4. This is not right. This is not right. Okay, next question. Fair. First we have to find alpha. Okay. देखो, इसका इंटीग्रेशन तो तुम कर लोगे, ठीक है. इसका मैं बताता हूँ. देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो देखो 0 से लेके 1 तक तो ये 0 रहेगा, ठीक है. 1 से लेके 8 तक, 1 to 8 ये आपको 1 देगा ओपन. फिर 8 to 27 ये आपको 2 देगा, या 1 देगा 2 देगा. और फिर यहां से 64 तक ये आपको 3 देगा. तो इनकी वैल्यूज की, इसका तो आ जाएगा एरिया 7, इसका आ जाएगा 27 है, ये 27. 19 इंटू 2 90, या 9 7 प्लस 19 इंटू 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 64 माइनस 27, 64 माइनस 27 कितना होता है, 39 आई नो 64 minus 27 it will be 7 and 37, sorry, yeah 37. So इसको सिंप्लीफाई कर लो, 156 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 192. ये हो गया 192. तो 192 माइनस 156, ये आ गया 6, 8 माइनस दिस 36. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 36. ओके, 36 को मैं आगे लिखता हूं, तो आ गया ये 36/पाई. ठीक है, क्या मैं इसको पाई की जगह π/2 लिख के यहाँ 2 लिख लेता हूँ, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 प्लस कॉस 6 डी थीटा. ओके, नाउ देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो ये कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसको पूरा j मान लूं, इसको मैं पूरा j मान लूं और प्रॉपर्टी यूज करके ये कॉस स्क्वायर में आ जाएगा और दोनों को ऐड कर दूं 2j, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/10⁻6 थीटा. ओके, sin to the power 6 थीटा एंड cos to the power 6 थीटा. cos थीटा को मैं कॉमन लेता हूं, तो यहाँ आ जाएगा sec to the power 6 थीटा, जिसको मैं 4 थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा में लिख देता हूं एंड d थीटा. अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से लेके π/2. तो अगर मैं tan थीटा को मान लेता हूं, tan थीटा को मैं मान लेता हूं लैम्बडा, तो देखिए π/2 पे ये हो जाता है इन्फिनिटी और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू द
लैम्बडा स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 1 क्यूब। ओके, मैं इस फॉर्म में क्यों लिखा हूं देखो, अब मैं आइडेंटिटी यूज करूं तो वो कट जाए, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्बडा टू द पावर 4 माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ऊपर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर, डिवाइड में बचेगा लैम्बडा टू पावर 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 यूजिंग द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, नाउ टेक लैम्बडा स्क्वायर कॉमन, इट विल बी बिकम 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो मैं इसको माइनस होल स्क्वायर बना सकता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर बना सकता हूं। पहले तो इसमें अगर मैंने लैम्बडा स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 करते हैं, इन दोनों से मिलके ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा, और ऊपर हमारा चल रहा है 1 प्लस 1 अपॉन, गिव मी अ सेकंड, तो देखिए न्यूमरेटर में चल रहा है 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, डिवाइड में ये तो बन जाएगा लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा होल स्क्वायर माइनस प्लस 1। ओके, नाउ we have to do integration 0 to infinity. Now see this, if you take this as a t, or you can take as whole this, you can take this as a t, then it is the integration, it is the differentiation of this t, it will become dt upon t square plus 1. So you can use the tan inverse of this plus 1. So answer will be tan inverse of lambda minus 1 upon lambda divided by this, but it is 1, so we don't have to think about that. Okay, now put the values. At 0 it will be negative infinity, which is minus pi by 2, and at positive infinity it will be pi by 2. So pi by 2 minus of minus pi by 2, it will be pi. So the value of 2j is equal to pi. 2j is equal to pi, then j is equal to pi by 2. Now use this value here. Use this value here. 36 by pi multiply by 2 into pi by 2. This will get cut. This will get cut. Answer is 36. Answer is 36. Okay. In this question, it is given to us that there is a sum A which has a lambda in one of the component, which is Z component, and we have B. Okay, B another vector, and it makes obtuse angle. It means A dot B should be less than 0. One thing we know. Another thing, that angle theta with a positive Z axis is from 30 degree to 90 degree. ठीक है, तो इसका जो एंगल है Z axis वो क्या होता है, we know that cos theta will be Z component डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो, अब ये बोल रहा है 30 डिग्री से 90 डिग्री है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये लेस देन होनी चाहिए √3/2 जो कि आपको 30 डिग्री पे मिलता है, और ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 जो कि 90 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाइड करो तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, और लैम्बडा भी इसने कहा पॉजिटिव ही है, तो हमें लैम्बडा की सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए देखना, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर श्योर। अब इस पार्ट को देखते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, आई विल गेट 3/4। ओके, लैम्बडा स्क्वायर 4 लैम्बडा स्क्वायर लेस देन 3 3 9 plus 3 lambda square. So lambda square less than 9. So lambda must be belongs to -3 to +3. Okay. -3 to +3. Now अब दूसरी बात करते हैं A डॉट B की। A डॉट B,
a डॉट बी निकालते हैं तो मिलेगा मुझे -√2 लैम्बडा स्क्वायर -4√2 ओके एंड प्लस लैम्बडा इंटू 4√2। इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए क्योंकि उसने कहा ऑब्ट्यूज एंगल है। सो -√2 लैम्बडा स्क्वायर, सब में से √2 कॉमन आ रहा है तो √2 हटा ही देते हैं, ओके माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस, और पहले इसको ले लेते हैं 4 लैम्बडा -4, इट इज लेस देन 0। सो लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 4 इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं इसके रूट्स क्या हो जाएंगे। रूट्स क्या है, तो लैम्बडा -2 होल स्क्वायर ही बन रहा है, तो ग्रेटर देन 2 होने के लिए लैम्बडा 2 नहीं हो सकता, लैम्बडा कैन नॉट बी 2। उसके अलावा बाकी स्क्वायर है तो सब जगह पॉजिटिव होगा। अब दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि भैया लैम्बडा की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, और यहां बोल रहा है ये -3 से 3 है। तो अगर देखो, अगर मैं लैम्बडा, फिर तो लैम्बडा की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ये आती है कि लैम्बडा 0 से लेके 3 के बीच में है कहीं, लेकिन उसमें से आपको 2 हटाना पड़ेगा। तो चलिए, आपको सबकी वैल्यू आ गई, अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0 to 3 एंड -2। Let S be the set of first n natural 11 natural numbers. It means 1, 2, 3 up to 11। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे छोटे छोटे b बनाने हैं। b क्या है, सबसेट है S के, इसके सबसेट बनाने हैं। कैसे कि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो वो इवन होना चाहिए, और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 होना चाहिए। मान लेते हैं कि लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट इन b is equal to 2. So how many ways you can choose 2 element from here? 11c2. But अगर आपने दोनों ऑड चुन लिए, तो दोनों ऑड चूज कर लिए, तो सर उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। हमें ऑड नहीं चाहिए, तो हमें वो केसेस निकालने पड़ेंगे, वो केसेस निकालने पड़ेंगे जब आपने जो चूज करे वो सबके सभी क्या हो, ऑड हो। तो ऑड कितने लोग हैं यहाँ पे, यहां कितने ऑड है, 1 से लेके 11 कितने, 6 ऑड है, ठीक है। तो 6 में से किस 2 लोगों को चूज करने की तरीके हमें डिलीट करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, मान लेते हैं एन बी 3 है, तो 11c3, बट 6 में से तीनों लोग अगर ऑड हो जाए तो देन एन बी मान लेते हैं 4 है, तो 11c4, लेकिन सबके सब ऑड हो गए तो एन बी 5 है, तो 11c5, लेकिन सबके सब ऑड हो गए तो हटाओ उनको। और एक लास्ट आता है एन बी 6, तो 11c6, लेकिन सबके सब ऑड हो गए तो हटाओ उन्हें। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब मान लेते हैं कि एन बी जो है वो 7 है, तो इसका आंसर सीधा 11c7 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मैंने 6 ऑड दिए, 6 इवन दिए, आपको कोई भी 7 नंबर्स मुझे वापस रिटर्न करने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें एक भी इवन ना हो, ठीक है। उसी तरह NB 8 के लिए भी ये बात लागू होती है, NB 9 के लिए भी, NB 10 के लिए भी, और NB 11 के लिए भी। तो इन सब तरीकों को ऐड करते हैं तो एडिशन कुछ ऐसा हो जाएगा। एडिशन मेरा हो जाएगा summation of 11C R, where R is going from 2 to 11, minus summation of 6CR, where your R is going from 2 to 6, ठीक है। इसका समीशन कितना हो जाएगा, 2 to the power 11, 2 to the power 11 minus 11C 0, 11C 1, सो आपको माइनस करने पड़ेंगे इसमें से
11c 0 which is 1 minus 11c 1 which is 11 माइनस यहां से आपको माइनस करने पड़ेंगे 2 to the power 6 माइनस 6c 0 1 माइनस 6। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो जाता है 2024 नो 2048 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 to the power 6 हो जाता है 64 प्लस 1 प्लस 6 2048 इस 1 से ये गया 11 और 6 से 11 एंड 6 आपको देगा -5 और ये हो जाएंगे -69। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 1900 एंड समथिंग 1979 79 yeah 79। next this is easy one, see guys, I have to find tan 2 alpha. Okay, can I write down tan 2 alpha is equal to tan alpha plus beta plus alpha minus beta। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। tan alpha plus beta plus tan alpha minus beta whole divided by 1 minus tan alpha plus beta into tan alpha minus beta। अब देखिए इसने बोला अल्फा जो है 0 से 60 डिग्री के बीच में और ये 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो इन दोनों का सम जो है करने पर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो देखिए ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपकी हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 19 √99 एंड नेगेटिव व्हाई बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, हाँ बेस हो गया। फिर आ जाता है आपका tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो tan अल्फा माइनस बीटा के लिए हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है 3 एंड बेस की वैल्यू 8 स्क्वायर 64 माइनस 9 √55 पॉजिटिव। ओके, क्योंकि देखिए अल्फा माइनस बीटा, हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, बट अभी के लिए ये रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं इनमें कहीं ऐसी वैल्यू नहीं, ये नहीं बोला गया ना कि अल्फा बड़ा ही, हाँ वैसे देखिए अल्फा बड़ा ही है बीटा से, क्यों अल्फा माइनस बीटा एक पॉजिटिव आ रहा है और हमें पता है साइन नेगेटिव एंगल इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, सो इट मींस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा, और इनकी वैल्यू अगर 60 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा और इसकी है तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा। चलिए इन वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं, -√99 ओके प्लस 3/√55 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस √99 इंटू 3/55 √55। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 9 से तो 3 बाहर आ जाएगा √11 प्लस 3/√5 √11 होल डिवाइडेड बाय इसमें से 3 बार आ जाएगा 5 आ जाएगा 1 प्लस √11 से √11 कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 3 9/√5 9/√5। ओके और जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ओके 3 को मैं आगे लिख लेता हूं या 3 को कॉमन ही ले लेते, देखो 3 को मैंने कॉमन लिया, ठीक है यहां पर आ जाएगा मेरा 1 आ रहा है 1 माइनस यहां कितना बन जाएगा 5 √11 √5 होल डिवाइड में √55 है, नीचे मेरे पास यहां बन जाएगा √5 प्लस 9, ठीक है मल्टीप्लाई
√5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5 इंटू √11, √5 से √5 कट गया। अब जरा अच्छे से लिख लेते इसे, 1 माइनस 11 √5 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस √5 एंड √11। कंपेयर कर लेना, शायद r की वैल्यू तो 11 है और s की वैल्यू 9, तो 20 हो जाएगा आंसर अगर सबमिशन पूछ रहा तो, या 20। चलिए नेक्स्ट वन, सपोज ए बी सी आर इन ए पी। ओके, सपोज कर लिया a इज इक्वल टू b माइनस डी, b इज इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू b प्लस डी। जब भी आपको 3 नंबर देना और उन्हें आपको सपोज करना हो ना, ऐसे करने में बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां इसने बोला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, अगर मैं तीनों का सम करूं तो d तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 3b इज इक्वल टू 1, सो b मस्ट बी 1/3। नेक्स्ट उसने बोला a स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन जीपी। इसका मतलब 4 इंटू बी टू द पावर 4 इस मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो a स्क्वायर की वैल्यू है b माइनस डी और c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b प्लस डी होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिलता है b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b टू द पावर 4। वैल्यूज पुट कर देते 1/3। सो यहां पर तो आ जाएगा 4/81 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 1/9 माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी टू द पावर 4 प्लस 1/81 माइनस 2/9 इंटू डी इज इक्वल टू 4/81। और एक्चुअली दिस इज डी स्क्वायर। अब क्या करें, 81 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही बेटर रहेगा या कुछ और कर सकते हैं। 2 इंटू 1/9, या चलो उसको उधर भेजते हैं, डी टू द पावर 4 माइनस 2/9 डी स्क्वायर, इसको इधर लेकर आए माइनस 3/81 1/27 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 27 डी टू द पावर 4 माइनस 27 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, 27 डी टू द पावर 4 माइनस 6 डी माइनस 1 इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 27, 9 इंटू 3, सो 27 डी टू द पावर 4 माइनस 9d प्लस 3d माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मैंने कॉमन लिया 9d कॉमन लेते ही, हाँ 9d स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 9d स्क्वायर कॉमन लेने पर 9d स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पर तो बचेगा 9d स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 9d स्क्वायर, और वहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कुछ नहीं, +1 नहीं 3d स्क्वायर, और या आई हैव डन मिस्टेक, या 3d स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। सो +1 और 3d स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो मुझे देखो यहां से मुझे d की कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी, तो मेरे काम का नहीं है हिस्सा, ये हिस्सा काम का। d की वैल्यू मुझे मिलेगी ±1/√3। अब देखो अगर ये नेगेटिव होता, d नेगेटिव होता, तो c की वैल्यू b से कम हो जाएगी, जो कि गलत है। तो इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। अब मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। a स्क्वायर क्या था, 1/a स्क्वायर हो जाएगा b माइनस डी होल स्क्वायर, और b स्क्वायर तो b स्क्वायर है, और c स्क्वायर हो जाएगा b प्लस डी होल स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2 तो b स्क्वायर आ जाएंगे,
दो डी स्क्वायर आ जाएंगे और एक बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर में की वैल्यू थी कितना, बी स्क्वायर वॉज 1/9, सो 3/9 प्लस 2/3, ये कटी, ये हो गया 1/3। सो ये आंसर आ गया मेरे पास 1, बट उन्होंने कहा है 9 into, so multiply this by 9, you will get 9।